السلام علیکم ناظرین، TNN TV کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ عالمگیر وبا کورونا وائرس کی چوتھی لہر نے مزید 57 زندگیاں اجاڑ دیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 3613 نئے مریض رجسٹرڈ کر لیے گئے۔ ملک بھر میں یوم دفاع پاکستان بھرپور ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ صدر و وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان نے بے مثال جرأت مندی سے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا تھا۔ حکومت پر حملہ کرنے والے قانون کی بالادستی نہیں چاہتے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں ہماری جنگ سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ہے، ایکسپورٹ بڑھے گی تو ملکی قرض اتارے جا سکیں گے۔ مستونگ اور گوادر واقعات میں ملوث دہشت گرد افغانستان سے آئے تھے۔ وزیر داخلہ کہتے ہیں پوری دنیا کے میڈیا میں افغانستان ٹاپ ٹرینڈ ہے اور بھارتی میڈیا پاکستانی وفد کے دورہ افغانستان پر واویلا مچا رہا ہے۔ یوم دفاع کی تقریب میں نہیں گیا، نوٹس پر احتساب عدالت آیا ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں نوری آباد پلانٹ کے غیر قانونی ٹھیکوں اور منی لانڈرنگ ریفرنس میں فراہم کیے گئے والیوم میں اکثر صفحات غائب ہیں۔ انتقام کی آگ بجھانے کے لیے جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں، احسن اقبال کہتے ہیں نیب نے ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ ICC مینز T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ سرفراز احمد ڈراپ کر دیے گئے، بابر اعظم کپتان ہوں گے۔ چیف سلیکٹر محمد وسیم کہتے ہیں پاکستان کا اسکواڈ 15 رکنی ہے۔ بارشوں کا نیا اسپیل، شہر قائد کے باسی ایک بار پھر تیار ہو جائیں۔ موسم کا حال بتانے والوں نے 9 اور 10 ستمبر کو کراچی میں بارش کی نوید سنا دی۔ کینیڈین وزیر اعظم راج سینی اسکینڈل سے کافی مایوس ہو گئے۔ جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں غور کروں گا کہ راج سینی کے معاملے میں مختلف طریقے سے کیا کرنا چاہیے تھا۔ اونٹیریو میں مہلک وائرس کے 811 نئے کیسوں کے ساتھ ساتھ 3 مزید اموات کی اطلاع۔ صوبے کا فعال کیس لوڈ جون کے آغاز سے اب تک اپنی بلند ترین سطح پر ہے۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 15,11,212 تک جا پہنچی، جبکہ ہلاکتیں 27,006 ہو گئی۔ 14 کو ہٹائے جانے کے طریقہ کار میں انصاف نہیں تھا، میجر جنرل ڈینی 14 کے وکلاء نے الزام عائد کر دیا۔ عہدے پر بحالی کا مطالبہ بھی کر دیا گیا۔ پنجشیر پر مکمل قابض ہو گئے، بجلی اور انٹرنیٹ بحال کر دیا۔ ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں کہ DG ISI نے ملا برادر سے بھی ملاقات کی۔ احمد مسعود نے طالبان کو جنگ بندی کے لیے مشروط پیشکش کر دی۔ امریکی جرنل نے خبردار کر دیا، جنرل مارک ملی کہتے ہیں کہ اگر افغانستان میں ایسی حکومت قائم نہ ہو سکی جس میں تمام اقوام اور طبقات کی نمائندگی نہ ہو تو اس سے ملک میں خانہ جنگی پیدا ہو جائے گی۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 45,83,053 ہو گئی۔ متاثرین کی تعداد 22,16,19,000 سے تجاوز کر گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کورونا وائرس سے 57 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 26,232 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 11,82,918 ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,613 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 4,03,157، سندھ میں 4,38,327، خیبر پختونخوا میں 1,65,200، بلوچستان میں 32,403، گلگت بلتستان میں 10,051، اسلام آباد میں 1,09,56، جبکہ آزاد کشمیر میں 32,824 کیسز رپورٹ ہوئے۔
मुल्क भर में अब तक 1,81,10,457 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 57,131 नए टेस्ट किए गए। अब तक 10,64,319 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 5,606 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में 12,066, सिंध में 6,960, खैबर पख्तूनख्वा में 5,107, इस्लामाबाद में 874, बलूचिस्तान में 340, गिलगित बल्तिस्तान में 177 और आज़ाद कश्मीर में 708 मरीज जान से हाथ धो बैठे। पूरी कौम ने यौम दिफा पाकिस्तान भरपूर मिली जोश व जज्बे से बनाया। मुसल्लह फ़ौज के गाजियों और शहदा को सलाम और खराज अकीदत पेश करने के लिए कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यौम दिफा का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। जंग सितंबर की याद में तमाम छावनियों में भी खुसूसी तकरीबात मुनक्किद हुई। इस मौके पर दिफाई साजो सामान की नुमाइश भी की गई। मुसल्लह अफवाज के गाजियों और शहदा को सलाम और खराज अकीदत पेश करने के लिए कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। इस पुरवकार तकरीब में मज़ार कायद पर गार्ड्स के फराइज पाक फिजाइया के कैडेट्स ने संभाल लिए। यौम पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी पैगाम में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने बेमिसाल जुर्रतमंदी से दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यौम दिफा और शहदा पर अपने पैगाम में कहा है कि जिंदा कौमें आजमाइशों से गुजर कर और भी मजबूत हो जाती हैं। सरबराह पाक फिजाइया एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का कहना था कि कौम यकीन रखे पाक फिजाइया मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। वजीर दिफा परवेज खटक का कहना था कि यौम दिफा पाकिस्तान हमारी तारीख में खुसूसी अहमियत का हामिल है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि 6 सितंबर का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक अहम संग मील की हैसियत रखता है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि 6 सितंबर 1965 का दिन पाकिस्तान की दिफाई तारीख का रोशन और काबिल फख्र बाब है। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का कहना था कि हमारा अजली दुश्मन आज भी हमारे खिलाफ जारहाना अज़ाइम रखता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कहना था कि दुश्मन के लिए पैगाम है, पाकिस्तानी अपनी आज़ादी की हिफाजत करना बखूबी जानते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि यौम दिफा मनाने का मकसद पाकिस्तान की जोग्राफिया, उसके नज़रिए और जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि एक सिस्टम हुनरमंद पाकिस्तानियों को यहाँ इजाज़त नहीं दे रहा था। हमारी जंग सिस्टम को ठीक करने की है। हम कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत पर हमला करने वाले कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। करप्ट सिस्टम की वजह से सरमायाकारी नहीं होती। लोग कराची से उठकर दुबई में पैसा लगा रहे हैं। नतिया गली में बानुल-अक़वामी होटल के संगे बुनियाद की तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि हमारा सबसे बड़ा असासा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। तारिकीन वतन का मुतालबा है कि मुल्क में उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत मुल्क की दौलत में इजाफा करना है। तारिकीन वतन की मुश्किलात को समझ सकता हूँ। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सलाहियतों से फ़ायदा उठाना है। तारकीन वतन के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो वो सरमायाकारी करेंगे। दुनिया को फरोख्त करने के लिए चीज़ें हों तो मुल्क तरक्की करता है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि जब वो पाकिस्तान में आए तो उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, उनके लिए हम मौके पैदा करें तो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें। लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी के पास इस वक्त जो उनका GDP या सालाना आमदनी 90 लाख पाकिस्तानी पाया है, ये 90 लाख पाकिस्तानी की जो सालाना आमदनी है वो तकरीबन हमारी 22 करोड़ लोगों की उतनी आमदनी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो मुल्क की कर्ज उतार सकेंगे। एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो रुपया मुस्तहकम होगा। इस बार 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट होगी। मलेशिया की 200 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है। सयाहत को बढ़ाकर मुल्क की दौलत में इजाफा कर सकते हैं। तो जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं और एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो हम अपना डॉलर का कर्जा वापस करेंगे। एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो हमारा रुपया मजबूत होगा, लोगों की दौलत में इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के नए सियासी हालात एक हकीकत है। सारी दुनिया की सियासत का मरकज़ अफ़गानिस्तान बनने जा रहा है। पूरी दुनिया की मीडिया में अफ़गानिस्तान टॉप ट्रेंड है।
मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हम अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के साथ हैं। अफगानिस्तान के नए सियासी हालात एक हकीकत हैं। सारी दुनिया की सियासत का मरकज अफगानिस्तान बनने जा रहा है। पूरी दुनिया के मीडिया में अफगानिस्तान टॉप ट्रेंड है और भारतीय मीडिया पाकिस्तानी वफ्द के दौरे अफगानिस्तान पर वावेला मचा रहा है। भारतीय मीडिया को देखकर हंसी आई। पाकिस्तानी वफ्द ने काबुल का दौरा किया तो भारत में बेचैनी पैदा हो गई। ऐसा लग रहा था कि DGISI अफगानिस्तान नहीं भारत गए हैं। भारत के पेट में दर्द है। 2 दिन तक जनरल फैज हमीद भारत के मीडिया पर छाए रहे। पाकिस्तान के अलावा मुख्तलिफ मुल्कों की एजेंसियों के अफराद अफगानिस्तान जा रहे हैं। देखें, इंडिया के पेट में दर्द है। जनरल फैज जो है वो DGISI बेस्ट फ्रेंड हो गया। आप ये देखें कि 2 दिन तक जनरल फैज ही उनके मीडिया पे छाए रहे। मैं इंडिया के मीडिया को देखता हूँ बाज़, मुझे ये हंसी आती थी। ऐसे लगता था कि जनरल फैज काबुल नहीं गया, वहाँ दिल्ली गया होगा। तो ये दूसरी एजेंसीज के लोग भी वहाँ जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों के भी लोग जा रहे हैं और अफगानिस्तान हमारे पड़ोस में एक हकीकत है। अफगानिस्तान की नए सियासी हालात एक हकीकत है जिनके साथ हमने दुनिया को साथ लेकर मिलकर तय करना मामला। वजीर दाखिला ने बताया कि तोरखम का दौरा किया, वहाँ हालात ठीक हैं। पाकिस्तान में कोई फेवरेट कैंप नहीं। भारत को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कोई महाजिर कैंप नहीं। अफगानिस्तान से जो लोग बगैर दस्तावेजात आए हैं उनका हुकूमत फैसला करेगी। और जो लोग बगैर किसी डॉक्यूमेंट के आए हैं या बगैर डॉक्यूमेंट के उनका पता नहीं वो कौन है कौन नहीं है, तो हम उनके बारे में हुकूमत फैसला करेगी। डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। गवादर और FC पर धमाके करने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है। मस्तूंग और गवादर में हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए थे। तोरखम और चमन के इस जानिब पाकिस्तान और दूसरी तरफ तालिबान का फैसला है। 12 तारीख से चमन और तोरखम बॉर्डर खोल रहे हैं। एहतसाब अदालत ने नैब रेफरेंस में तफ्तीशी अफसर को तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को हाजिरी लगाकर वापस जाने की इजाज़त दे दी गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर आला सिंध के खिलाफ नूरियाबाद प्लांट के गैर कानूनी ठेकों और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत हुई। मुराद अली शाह समेत दीगर मुल्ज़िमान अदालत में पेश हुए। जज एहतसाब अदालत ने इस्तफसार किया कि तफ्तीशी अफसर को बुलाएं। इश्तिहारी मुल्ज़िम मोहम्मद अली की प्रॉपर्टीज की तफसील भी पेश करनी है। अगर तमाम मुल्ज़िम मौजूद हैं तो फर्द जुर्म आयद कर देते हैं। वकील सफाई ने अदालत में कहा कि हमें रेफरेंस के जो वॉल्यूम फराहम किए गए उनमें अक्सर सफ़हात गायब हैं। जज एहतसाब अदालत ने कहा कि इस मुतालिक भी तफ्तीशी अफसर से पूछ लेते हैं। एहतसाब अदालत ने नैब रेफरेंस में तफ्तीशी अफसर को तलब कर लिया, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को हाजिरी लगाकर वापस जाने की इजाज़त दे दी गई। बाद अज़ा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा था। 1.5 माह पहले कोरोना की वबा कराची और हैदराबाद में फैल गई थी, जिसके बायस 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया। कराची में कोरोना की शरह 7 से 8% है। सिंध हुकूमत की SOPs पर आवाम ने अमल किया, जबकि हम कोरोना के हवाले से कोई भी चीज़ आवाम से नहीं छुपाते। हम सूबों में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी चीज़ अपने आवाम से छुपाते नहीं। अगर इन्फेक्शन रेट बढ़ जाता है, चाहे तनकीद हो, हम वो पूरी डिटेल्स देते हैं और हम वो उन्हीं जो हमारे पास नंबर्स आते हैं, हमारी जो कोरोना टास्क फोर्स है NCOC के दायरे में रहते हुए हम अपने फैसले करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल ने कहा है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में 1 माह रह गया है। हुकूमत ने अभी तक कोई मुशावरत नहीं की। पाकिस्तान में नैब की साख 0 हो चुकी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर अहसन इकबाल ने कहा है कि इंतकाम की आग बुझाने के लिए झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं। नैब ने चलते हुए मंसूबे तबाह कर दिए, मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट डाली। पेट्रोल, गैस, बिजली, अद्वियात क्यों महंगी हैं? हुकूमत को कोई पूछने वाला नहीं। आज कोई पूछने वाला है कि घी क्यों महंगा है, दालें क्यों महंगी हैं, सब्जियां क्यों महंगी हैं। एक गरीब आदमी बच्चों को फल नहीं खिला सकता। दूध क्यों महंगा है, चीनी क्यों महंगी है, दवाइयाँ क्यों महंगी हैं, बिजली क्यों महंगी है, गैस क्यों महंगी है। इसका जवाब नहीं है। हुकूमत से पूछें
मुस्लिम लीग नून के जी 2 बयानी हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ज़राए इब्लाग़ क़यामा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे पर 2.5 अरब रुपए खर्च हुए। नैब ने मंसूबे की 6 अरब रुपए लागत ज़ाहिर की। नैब ने चलते हुए मंसूबे तबाह कर दिए। उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में 1 माह रह गया है। हुकूमत ने अभी तक कोई मशावरत नहीं की। पाकिस्तान में नैब की साख 0 हो चुकी है। 1 महीना रह गया चेयरमैन नैब की मुद्दत ख़त्म होने में, अभी तक हुकूमत ने मुशावरत शुरू नहीं की। और अब हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो ऐवान सदर में कायम है, उससे चेयरमैन नैब को तौसीह देने का ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। महकमा मौसमियात ने 9 सितंबर से कराची समेत सिंध भर में मानसून बारिशों का नया स्पेल शुरू होने की पेशगोई कर दी है और कहा इस स्पेल में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिशें हो सकती हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि आईसीसी वर्ल्ड T20 का आगाज 17 अक्टूबर से UAE में होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की होम सीरीज 17 सितंबर से शुरू होगी। पाकिस्तान का स्क्वाड 15 रुकनी है, 3 रिजर्व प्लेयर्स शामिल हैं। टीम की ज़रूरत के मुताबिक इंतखाब किया, कंडीशंस को जहन में रखा है। मोहम्मद वसीम ने बताया कि T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की क़यादत बाबर आजम कप्तान, नायब कप्तान शादाब खान होंगे। टीम में आसिफ अली, आजम खान, हारिस रऊफ, हसन अली, अम्माद वसीम, खुशदिल शाह, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहीन शाह आफरीदी और सुहेब मकसूद भी शामिल हैं। सरफराज अहमद को ड्रॉप कर दिया गया है, जबकि रिजर्व प्लेयर्स में फ़खर जमान, शाहनवाज धानी और उस्मान कादिर शामिल हैं। आसिफ अली और खुशदिल शाह की कौमी स्क्वाड में वापसी हुई है। मोहम्मद वसीम के मुताबिक 15 रुकनी स्क्वाड में 5 बैट्समैन, 2 विकेट कीपर्स, 4 ऑलराउंडर्स और 4 फास्ट बॉलर्स शामिल हैं। तो ये 18 का स्क्वाड मैं अनाउंस करूंगा उसमें। तो स्टार्ट में जी बाबर आजम, शादाब खान, आसिफ अली, आजम खान, हारिस रऊफ, हसन अली, इमाद वसीम, खुशदिल शाह, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम, शाहीन शाह आफरीदी एंड सुहेब मकसूद। और जो ट्रैवलिंग रिजर्व्स में हमारे होंगे वो हैं जी शाहनवाज दानी, उस्मान कादिर एंड फ़खर जमान। दूसरी तरफ साबिक टेस्ट क्रिकेटर रमीज़ राजा के चेयरमैन PCB का ओहदा बाकायदा संभालने से पहले ही बड़ी तब्दीलियां सामने आई हैं और कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक और बॉलिंग कोच साबिक फास्ट बॉलर वक़ार यूनुस कोचिंग के ओहदों से दस्तबरदार हो गए हैं। मिसबाहुल हक ने और वक़ार यूनुस को सितंबर 2019 में ओहदे दिए गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात ने कराची में बारिश के नए स्पेल की पेशगोई कर दी है। कहा मानसून का नया स्पेल 9 सितंबर को मुतवक्के है। इस स्पेल में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिशें हो सकती हैं। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज का कहना था कि स्पेल का दौरानिया 2 रोज 9 और 10 सितंबर तक रहेगा और आइंदा चंद रोज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इस दौरान कराची का दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा का एक और कम दबाव बन रहा है। बारिश का सिस्टम सेंट्रल इंडिया और भारतीय राजस्थान से सिंध का रुख करेगा। हवा का कम दबाव 7 और 8 सितंबर को सिंध में दाखिल होगा। गुज़िश्ता रोज महकमा मौसमियात का कहना था कि अंदरूने सिंध मूसलाधार बारिश बरसाने वाला सिस्टम खत्म हो गया, ताहम शहर कायद में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।